ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस विशाल बोलो। सर आपने क्वेश्चन नहीं डाला क्लासरूम पे प्रेजेंट हाँ है कि डाल नहीं? देता हूँ बेटा, थोड़ा वेट करो। हाँ ओके सर। आपको मैं डाल देता हूँ। ओके। सो स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ अब हो रही है ना स्क्रीन से शेयर आपसे? विजिबल है ना यस मेरे सर हो स्क्रीन? गई। सर ओके ठीक है चलेगा। पर शुरू कर देते हैं हम। मेलिंग थ्रू पोस्ट। So, in handling mail procedure, we have seen that a lot of mails are coming to the various sites to the organization, and we used various types of mediums to send our messages to outsiders or outside parties. So we can use mailing uh, for mailing post, है ना? पोस्ट हम यूज कर सकते हैं, देन कुरियर यूज कर सकते हैं, और ईमेल भी वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ओके। सो as far as mailing through post is concerned, as we know that mailing through post, when we talk about the mailing through post, the post offices do various types of things such as the collection, processing, transmission, and delivery of mail. So this is all the functions of post office. And when we send mail through the post office, this function should be considered what happened after we posted our mails. So the first and most important function of mailing through post office is that to collect the mails from the various sources. So we can, so that anybody can uh, post their mails by post offices. So collection of post, it may be a postcards, it may be document, it may be a parcel, it may be valuable products. So any kind of things we can send to the post. Yeah. So this is one of the important function of collection, all kinds of mail, parcels of the post. So then they processed on it. It means that when we go enter in the post office, we can see there the one man sitting in the chair in office, and he performs various kinds of functions. Like when he receives mails from us, he um, check that whether you have written your address in correct place or not. Then yeah, he weighted it. It means that he measure it, है ना? Measure the weight of parcel or um, any kind of things that we want to send to the other parties. So these are all processing. These are all things considered in processing functions. Then transmission. Transmission means what? Sending one place to another. So there are a process when we receive mails. They can collect the mails from the boxes. They can collect mails by hand, and after that transmit it to the proper channel, like one post office to another post office. Then and delivery of mail. Delivery of mail means sending the that particular mail to the outsiders. All postal articles whose contents are in the nature of message can classified as a mail, which include letters, postcards, inland letter cards, packets, ordinary, registered, insured, value payable. Value payable means such as money transfer, है ना? And speed posts. Some speed posts are also sent by the um, customers or general peoples. So this is all happening in the post offices, and that is called as a mailing to post. So mail is further classified as first class and second class mail. As, as far as first class mail is considered,
First class mail gets free air transmission within India. Free air transmission. First class mail means transmission of mail within India free of cost. Then free air means only through the we can say that other channels rather than the sorry, I'm little confused about this. We'll tell you tomorrow. Okay. So whereas second class mail gets airlift only if prepaid with air surcharge. कुछ ऐसे मेल होते हैं जो कि बाहर को भेजने बाहर के देश में जाने वाले हैं उनको एयर सरचार्ज उसमें चार्ज करके हम बाय लिफ्ट उसे भेज सकते हैं या एयर थ्रू भेज सकते हैं ओके so the another medium of sending mail is courier. Hello, hello. It is taking Yes, sir. a little bit time, so please wait. Courier. कुरियर से भी आप कुरियर्स को आप भी जानते होंगे कुरियर्स क्या होता है क्या नहीं है कुरियर्स की बहुत सारी कंपनियां होती है जो कि आपके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू आप पार्सल करते हो तो ये एक मीडियम है मेल सेंड करने का सर स्क्रीन नाही दिसत आहे. दिसेल थांब फुल स्क्रीन के लिए आता दिसते का हो सर. कुरियर सर्विस का मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पर कुछ प्राइवेट फर्म्स होते हैं जो कि आपकी डॉक्यूमेंट से या पार्सल से वो सेंड करते हैं एक जगह पर से दूसरी जगह पर तो ये एक हम उसे कंपनीज कह सकते हैं या प्राइवेट फर्म कह सकते हैं कुरियर की जो कि कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपका जो कुरियर का जो मटेरियल है जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट है या कुछ पार्सल है या व्हेन वी कैन सी for example, if you have demanded some articles from the company, they also use this medium to send these articles to you. है ना आप देखते हो कि आपने अगर मोबाइल का वहाँ पर कुछ डिमांड किया है तो आप देखिए जो मोबाइल कंपनी जो है ऑनलाइन अगर आपने डिमांड किया है तो मोबाइल कंपनी क्या करती है किसी कुरियर के थ्रू आपको मोबाइल भेज देती है तो इस प्रकार ये एक माध्यम है आपसे कोई आर्टिकल हो या डॉक्यूमेंट हो आपको जल्द से जल्द मिलना चाहिए इसलिए हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं हमारे बिजनेस में कुरियर सिस्टम का तो कुरियर सर्विसेज कैन आइदर स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ शिपिंग विद इन सर्टेन डेस्टिनेशंस अब ये इस प्रकार का भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ सर्टेन डेस्टिनेशन के लिए कुरियर सर्विसेज होते हैं कुछ कुरियर सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लोकल के कुरियर्स करते हैं या लोकल्स का जो आर्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर कुछ इंटरनेशनल होते हैं कुछ नेशनल होते हैं है ना तो यहाँ पर हम उसके प्रकार भी देखने वाले हैं कि कुरियर के कौन कौन से प्रकार है तो वो भी देखते हैं तो this is one kind of courier services time sensitive shipping टाइम सेंसिटिव शिपिंग जो होती है वो वहाँ पर टाइम जो फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो टाइम है जहाँ आप एक जगह से दूसरी जगह पर एक डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कितना टाइम लगने वाला है वो वहाँ पर कंसिडर किया जाता है तो ज़्यादातर जो कुरियर सर्विसेज होते हैं कंपनीज होती है या फर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना टाइम जो फैक्टर है वो कंसिडर करते हैं वहाँ पर आपकी कुरियर डिलीवर करने का तो such as 1 to 3 business days and within specific hours during the day for example 8 to 10 a.m. तो ये काम करते हैं अपने हावर्स के हिसाब से या कितने दिनों में हम वो ट्रांसफ़र करें तो इसके हिसाब से एक टाइम सेंसिटिव शिपिंग मेथड है या कुरियर की या टाइप है उसका हम यूज़ कर सकते हैं है ना तो वो टाइम अगर आपका टाइम 1 से 2 3 दिनों तक है तो उनका टाइम जोन देखिए कि कितना है 1 से 3 दिन में आपका जो मैसेज है या डॉक्यूमेंट है या आर्टिकल है या पार्सल है कुछ
तो 1 से 3 दिनों में शिफ्ट हो सकता है क्या? तो ऐसी कंपनी चूज कीजिए जहाँ पर टाइम सेंसिटिव शिपिंग होती है। ओके, तो उसके कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर। DHL शिपिंग एंड FedEx एंड FedEx courier services are examples of courier companies with this goals, time sensitive shipping. Then local shipping. Some courier services focus on providing speedy same-day delivery for parcels and important documents within the limits of major metropolitan city, such as we can see that here is the example of Breakaway Courier in New York City. It deals with only parcels related with the New York City or within the area of New York City. तो ये सेम डे डिलीवरी करते हैं। जहाँ आपको कोई कुरियर भेजना है, सपोज मुझे अब अगर हम मुंबई में रह रहे हैं या नागपुर दिल्ली में रह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर ऐसी सर्विसेज होती है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन ये कुछ ऐसी कंपनीज होती है कि जहाँ पर आप उसका यूज करके आपका जो डॉक्यूमेंट है या पार्सल है वो इजीली भेज सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं लोकल शिपिंग, जो सिर्फ लोकली जो ट्रांसफर करते हैं कुरियर सर्विसेज या मेल्स या पार्सल्स। ये एक है। देन इंटरनेशनल शिपिंग कैन also find courier services with overseas networks that can help you ship your goods to foreign destination. Like we can see that our suppose we have um giving demand, or we can say that booking a mobile phone, then mobile phone can be comes to us from outside the countries, you know, or we can say that overseas countries. So how it is possible? It is possible because of only a international shipping uh, courier systems. Okay, so there are some uh, this type of courier system is also available in the world. No, they may also include services such as shipment tracking or tax or duty handling at an extra cost to ensure your shipment. Okay, so we can use these services for sending our mails to the outside country, or we can say that overseas countries. Some of the examples of this type of courier systems is China EMS, DC, and Aeromex are couriers that fit these examples. Okay, so look at another form of sending messages from one place to another, that is email, and we all are familiar with this type of mail system, email. Email as a name suggests, email, तो ई का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब तो अपना मेल ही है। जो हम मैसेज कर रहे हो वो हमारा मैसेज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल की एक डेफिनेशन हमने यहाँ पर दी है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो कुछ भी हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसे हम ईमेल कह सकते हैं, है ना। ये एक प्रोसेस है या मेथड है मेल सेंड करने की, लाइक पोस्ट ऑफिसेस, और वी कैन से दैट courier system. It is also a method of transferring a message from one place to the another. So we can use email for our mail purpose, है ना। email means electronic mail, and many of us regularly use this system for sending a message from one place to the another. So I think you are all familiar with this email system, है ना। आप जानते हैं ईमेल सिस्टम क्या है? यस सर। तो क्या ईमेल भेजते हो? यस सर। ओ, ओके, तो ये एक यूज़ कर सकते हैं हम हमारा मैसेज जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए। और अगर हम बिजनेस की अगर बात करें, तो वहाँ पर बिजनेस में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स या मैसेजेस हो सकते हैं, हम मैसेज कह सकते हैं उसे, जो हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं किसी का ईमेल एड्रेस। जैसे कि हमें अगर डॉक्टर लाहनी सर को कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजनी है, या कोई
अगर सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो मैं ईमेल का यूज़ करता हूँ। उनका ईमेल एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। जैसे कि हमें अगर किसी को मेल भेजना है तो उनका एड्रेस हमें जैसे लगता है, वैसे ही ईमेल अगर हम भेजना चाहते हैं तो जो हमारी पार्टी है जिससे हम डील कर रहे हैं या सेंड करना चाहते हैं हम, तो उनका मेल ईमेल आईडी हमारे पास होना ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस हमारे पास होना ज़रूरी है। तभी हम उनको वो मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकते हैं। ओके। सेकंड डेफिनेशन देखिए हमें ईमेल की क्या कहती है। ए मीन्स और सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली एज बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क कम्युनिकेटिंग बाय ईमेल। अभी वहाँ पर तो नेटवर्क की ज़रूरत ही होती है। जब तक हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी हमें ईमेल सेंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करना है तो वहाँ पर हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी भी होना चाहिए और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल हो, कंप्यूटर हो। तो इस प्रकार हम ईमेल सेंड करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हमारे पास होना ज़रूरी है। देन मैसेज सेंड and received electronically through an email system receives a lot of emails. तो मैसेज वी कैन सेंड और रिसीव। अब वहाँ पर जैसे हम मेल सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, वैसे ही ये एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हैं। देन देखिए parts of email. There are four parts for an email address, which includes the username and at the red symbol, domain name, a dot, and the domain. Let us know what these are. अब देखते हैं हम ईमेल एड्रेस जैसे होता है क्या उसकी जो पार्ट होते हैं उसे क्या कहा कैसे क्या कहा जाता है, ईमेल आईडी के पार्ट्स कौन कौन से, ये हम यहाँ पर देखेंगे। पहले तो हमारा किसी एक का भी हम अगर एग्जांपल ले, हमारे पास सबके पास ईमेल आईडी है, कुछ तो कॉलेज ने हमें सेंड किए हैं और कुछ हमारे पर्सनल भी ईमेल आईडीज है ना। तो ईमेल आईडी जो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बहुसेफ शिंदे 06@gmail.com, सॉरी gmail.com, ऐसा अगर ईमेल आईडी है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पार्ट्स क्या क्या है, यूज़र नेम क्या है। जैसे आपको एक मैसेज आया था कि आपके नाम, क्लास और उसके इनिशियल्स कुछ फिक्स किए थे और उसके बाद में @देवगिरी कॉलेज .org भी आया था आपको। अब किसी एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड है तो वहाँ पर एजुकेशन भी आ सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वेबसाइट से आईडीज है तो वहाँ पर एजू भी आ सकता है। तो वहाँ पर देखते हैं कि उसके पार्ट क्या क्या है। Username is the first part of your email ID. This part is usually the name of the persons to whom the mail is sent. जिसे हम मेल भेजना है उनके जो नाम होते हैं वो इस प्रकार में आते हैं। यूजर इसका ये ईमेल आईडी है। ओके। तो जैसे हमारा मेरे ईमेल आईडी में बहुसेफ शिंदे, ये क्या है, ये मेरा यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है ना। और किसी अगर तुम्हारा एग्जांपल लो वहाँ पर सेट करो तुम्हारा एग्जांपल, आपसे आप बताओ कि आपका ईमेल आईडी क्या है, कोई भी एक फ्रॉम योर साइड। श्रद्धा बोथरा gmail.com। श्रद्धा बोथरा, तो यहाँ ये जीमेल में वहाँ पर श्रद्धा बोथरा ये क्या है, ये है हमारा यूजर नेम। ओके। देन @सिंबल, अगर कोई भी ईमेल आप देखेंगे तो वहाँ पर @सिंबल होता है। देखो @सिंबल के सिवाय ईमेल आईडी हो ही नहीं सकता है ना। तो ये एक @सिंबल ईमेल आईडी का पार्ट होता है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके सिवाय तो हमारा ईमेल आईडी बनता ही नहीं है। किसी भी ईमेल आईडी को देखो आप, वहाँ पर @सिंबल नहीं है ऐसा कोई भी ईमेल नहीं आप देख पाओगे या नहीं है वहाँ पर। होता है क्या ऐसा, कभी किसी का ईमेल आईडी बनता है @सिंबल के सिवाय? नहीं सर। नो सर।
दिस सेपरेट्स द यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ये क्या करता है, डोमेन नेम और यूजर नेम को सेपरेट करता है, एट द रेट सिंबल। तो वहाँ पर हम कहाँ पर डालते हैं ये, इन बिटवीन द डोमेन नेम एंड यूजर नेम, है ना। जैसे कि श्रद्धा बोथरा एट द रेट, वहाँ पर आगे क्या था बेटा, gmail.com। gmail.com। ओके, तो जीमेल वहाँ पर डोमेन नेम है सब। अगर आपको ये हमारा कॉलेज का आईडी देखो, वहाँ पर क्या होता है, एट द रेट देवगिरी कॉलेज, है ना। एट द रेट देवगिरी कॉलेज होता है कि नहीं। पहले तो आपका नेम है, वहाँ पर BCom TY डॉट और एक कुछ वहाँ पर दिया है, और बाद में उसके बाद में एट द रेट के बाद में देवगिरी कॉलेज दिया है। तो ये दो सेपरेट पार्ट करता है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम सेपरेट करने वाला जो सिंबल है वो है हमारा एट द रेट। ओके, द सिंबल एट द रेट वॉज इन्वेंटेड बाय रे थॉमिल्सन इन 1971। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जैसे श्रद्धा के नेम में उनका नाम था श्रद्धा बोत्रा, एट द रेट जीमेल था, जीमेल जो था वो था डोमेन नेम, और वहाँ पर डॉट दिया है। डॉट को भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। याहू ये है हमारा डोमेन नेम, और डॉट जो सेपरेट करता है एड्रेस को और पार्ट्स, जो एड्रेस पार्ट और लास्ट पार्ट जो होता है उसको सेपरेट करते हैं। ओके, डॉट। तो यहाँ पर नेम एट द रेट yahoo.com में नेम जो है हमारा ईमेल, सॉरी यूज़र नेम है। एट द रेट यहाँ पर सेपरेट करने के लिए सिंबल है जो डोमेन को और यूज़र नेम को सेपरेट करता है। एंड ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसे किसने इन्वेंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, रे थॉमिल्सन। कब इन्वेंट किया है, 1971। 1971। 1971। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसने और कब। Then domain name. This refers to the mail server, the place where your email is stored, कहाँ पर आपके मेल स्टोर होने वाले हैं। तो जैसे आगे एक एग्जांपल, नेम एट द रेट आउटलुक। तो आउटलुक ये जो है वो है हमारा डोमेन नेम, और आपको जो हमने ईमेल आईडीज दिए हैं उसका डोमेन नेम क्या है बेटा। devgiricollege.org। हाँ, देवगिरी कॉलेज ये है उनका उसका डोमेन नेम। ओके, देवगिरी कॉलेज ये डोमेन नेम हो गया, और .org तो वो अगला पार्ट है हमारे ईमेल आईडी का। ओके, तो डॉट का देखिए क्या है, अ डॉट दिस सेपरेट पार्ट्स ऑफ द एड्रेस और जो आपका लास्ट डोमेन होता है उसका सेपरेटाइजेशन करता है। डोमेन टेल्स व्हाट टाइप ऑफ पेज यू आर यूजिंग, कौन सा वेब पेज, हम किस प्रकार का वेब पेज यूज़ करते हैं। वो वहाँ पर हम कमर्शियल वेब पेज है या ऑर्गेनाइजेशनल है या एजुकेशनल है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। ओके, हमारा ये एजुकेशन का है लेकिन फिर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने वो लिया है, तो वहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके ईमेल आईडी में .org है, देवगिरी कॉलेज .org, है ना। तो इस प्रकार हमारा ईमेल आईडी हो सकता है एक हमारा माध्यम जो जिसके थ्रू हम वहाँ पर मेल सेंड कर सकते हैं। ओके, so look at once all this. I don't think we continue with office automation because it is a separate part of our separate topic for discussion. Okay. So once again, look at the highlights of today's discussion. That is mailing through post. As we have told you earlier, there are various kinds of mediums from which we can send our message from one place to the another place, or parcels, or it may be a message, parcel, or postcard, है ना। तो ये हम भेज सकते हैं पोस्ट के थ्रू। तो वहाँ पर पोस्ट एक है। देन कुरियर का एक सिस्टम है, कुरियर से भी हम हमारे जो टीवी प्रोडक्ट्स है वो कुरियर से भी भेज सकते हैं, कुछ पार्सल से कुरियर से भेज सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी हम कुरियर से भेज सकते हैं।
वहाँ पर कुछ कंपनीज है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कुरियर जो होता है वो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म हो सकता है। ओके। और जो पोस्ट ऑफिसेस होता है, मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस इन वेरियस कंट्रीज आर अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। ओके। ये जो पोस्ट ऑफिसेस होते हैं ना, वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट मोनोपोली होती है। गवर्नमेंट सरकार ही देखते हैं उनकी सब कुछ, जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट हो या उनका जो सैलरी हो या अदर कुछ थिंग्स हो, वो सभी सरकार के हाथ में। तो हम उन्हें गवर्नमेंट्स मोनोपोली कह सकते हैं वहाँ पर। और कुरियर जो होता है ना बेटा, कुरियर वहाँ पर हम कुरियर को क्या कहते हैं कि एक प्राइवेट फर्म होता है, वो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि हम हमारे जो पार्सल है, डॉक्यूमेंट्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करें। तो उसकी कुछ प्रकार भी मैंने यहाँ पर बताया आपको। उसके जो प्रकार है उनमें सब फर्स्ट था टाइम सेंसिटिव। इसमें टाइम जो है और कंसिडर किया जाता है। तो टाइम सेंसिटिव शिपिंग मेथड एक है कुरियर सर्विसेज में। तो ये वर्ल्ड वाइज यूज होती है, लेकिन वहाँ पर टाइम सेट किया जाता है कितने दिनों में आपका, कितने दिनों में मीन्स बिजनेस डेज वहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं, नॉट कि हॉलीडेज। ओके। हॉलीडेज अगर होगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। बिजनेस डेज मीन्स वी कैन से दैट रादर देन द हॉलीडेज। एंड विदिन स्पेसिफिक हावर्स, तो स्पेसिफिक हावर्स में भी वो अरेंज होते हैं आपके इधर 8 से 10 AM तक। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पर टाइम अलग अलग हो सकता है। तो उसकी एग्जाम्पल दिए थे DHL शिपिंग एंड FedEx कुरियर सर्विसेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कुरियर कंपनीज विद दिस गोल्स, टाइम सेंसिटिव शिपिंग गोल्स। देन हमने देखा कि वहाँ पर एक लोकल शिपिंग मेथड भी है ना। तो वहाँ जो सिर्फ लोकल के मेल से या पार्सल से वो डिलीवर करने का काम लोकल शिपिंग मेथड करता है। कि यहाँ पर एक एग्जांपल था आपके ब्रिक वे कुरियर इन न्यूयॉर्क सिटी। तो सिर्फ यहाँ पर काम करता है सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में। देन सम इंटरनेशनल शिपिंग couriers are also there. So we have some examples here. China EMSL, KDDC and Aramex are couriers that fit these examples. तो ये भी इंटरनेशनली शिप कर दें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो या पार्सल्स हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वी कैन से दैट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। दिस इज। हाँ, उसके बाद में हमने देखा ईमेल क्या है और उसके पार्ट्स क्या है। ओके। तो here I am asking the questions about मैं एक क्वेश्चन आस्क करता हूँ। क्वेश्चन बाकी है हमारा, प्रेजेंटी का क्वेश्चन बाकी है शायद, तो आस्क करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वेट। अगर उसके बीच में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हो। हेलो, if you Yes, have sir. Yes, any sir. question, any query, you can ask me। Yes, sir. क्वेश्चन डालता हूँ बेटा। Hi, sir. एक 5 मिनट दे देता हूँ आपको, 9:25 तक टाइम दे देता हूँ आपको। 5-7 मिनट दे देता हूँ। उसके बीच में आप आपका अटेंडेंस देना है। Here I have asked one question about the about attendance. So go there and give your attendance. If you have any question, any query, these sessions will open for
डिस्कशन। एप्लीकेशन जो है डिस्कशन के लिए ओपन है, आपको किसी को कोई भी समस्या है तो आप बोल सकते हो। ओके, दिस